डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। दीप प्रज्वलन। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर। एक्चुअली NHPC एस्टैब्लिश्ड 1975 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्रूव हुआ था। NHPC आज तक 51 उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना प्रोजेक्ट्स है उनको काम किया हुआ। मेरा कहने मतलब है कि NHPC पूरे इंडिया में हमारे हिंदुस्तान को, हमारे अजीम मुल्क को जो रोशनी दिया है इन्होंने, वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। इन्होंने इतना काम किया है हमारे इस पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। Next, Honorable Councillor Agha Ainul Huda ji. जो हमारे जिन लोगों ने हमें कीमती वक्त यहाँ पे दिया और पूरे हमारे प्रोग्राम को बहुत बाखूबी, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। NHPC से रोशन रोशन वतन हमारा, कर्मठ हैं इसके सेवक, मेहनत है इनका नारा। ऊर्जा संरक्षण करते हैं बनाते। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सलाम जुले नमस्ते। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर जाफर आखोन, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, स्पेशल गेस्ट ऑफिशियल्स, artists, media personals, ladies and gentlemen, good evening. A very warm welcome to each one of you. I, Zebun Nisa, on behalf of NHPC Kargil, it gives me immense pleasure to welcome you all to the 51st Raising Day celebration, a day that marks the glorious journey of NHPC in illuminating lives and empowering the nation. आज का ये विशेष अवसर NHPC की उस उपलब्धि का प्रतीक है जिसने देश की विकास में ऊर्जा और उम्मीद की एक नई रोशनी जलाई है। Now I request HOP sir to felicitate today's our chief guest Dr. Jafar Akhon, Chief Executive Councillor and Chairman LHDC Kargil, and special guest with traditional khatas. Please sir. श्री नासिर मुंशी सर, श्री आगा ऐनुल हुदा सर, Now I may request Shri Mohammad Suhail GM to felicitate HOP sir with traditional khatas.
थैंक यू सो मच सर। हम अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ अपने बीच मौजूद मुख्य अतिथि डॉक्टर जाफर आखून, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड चेयरमैन LHDC कारगिल का हार्दिक स्वागत करते हैं। We are equally honored to welcome our special guests, Shri Nasir Munshi sir and Shri Ainul Huda sir, along with all respected dignitaries, senior officials, special invitees and the entire NHPC family. कृपया उनका तालियों से गर्मजोशी से स्वागत कीजिए। To begin this celebration on an auspicious note, I request our chief guest, Dr. Jafar Akhon, Chief Executive Councillor LHDC Kargil, our special guests Shri Nasir Munshi sir and Shri Ainul Huda sir, to kindly come forward for the lighting of the lamp, the symbol of wisdom, prosperity and new beginnings. दीप प्रज्वलन। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। Every celebration becomes meaningful when we hear the words of wisdom and inspiration from our leaders. On this proud occasion of NHPC Raising Day, it is my honor to invite our respected HOP, Shri Ramakant Malik, to kindly come on stage and share his valuable thoughts and address the gatherings. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Ramakant Malik sir with huge round of applause. Namaskar to all. Good evening. Respected Shri Dr. Mohammad Jafar Akhun, Chairman and Chief Executive Councillor Ladakh Kargil. Respected Nasir Hussain Munshi, Councillor Chatsuk. Respected Ainul Huda, Councillor Patkuchika. And अपना NHPC Chittagong Power Station all officers and Ladakh police and all ladies and lovely children. I extend a warm welcome to you all auspicious occasion of Golden Jubilee 51st NHPC Raising Day celebration today. NHPC celebration today 50 August. Actually NHPC established 1975 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्रूव हुआ था। NHPC आज तक 51 उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना प्रोजेक्ट्स है उनको काम किया हुआ। NHPC स्टार्टिंग में जो 1975 साल में जो NHPC क्रिएट हुआ था, इसमें 3 प्रोजेक्ट हम लोग को लोकतक एक प्रोजेक्ट मणिपुर स्टेट में, सलाल एक प्रोजेक्ट J&K में, बेलासुल एक प्रोजेक्ट हिमाचल में, तीनों को हैंडओवर स्टेट गवर्नमेंट हैंडओवर NHPC किया। ये शुरू से स्टार्ट किया तीनों प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आज का डेट में NHPC में 30 प्रोजेक्ट ऑल इंडिया में कमीशन हुआ। इसका टोटल जनरेशन आज का डेट में 8,396 मेगावाट पे क्षमता में आ गया। आज का डेट में NHPC किया हुआ ये सबसे मेन सबसे अच्छा सेंट्रल PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि इतना प्राप्त हुआ। इसका साथ साथ 14 प्रोजेक्ट उस 9,700 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन पे, ये भी ये प्रोजेक्ट है 2032 को करीब करीब कंप्लीट ही हो जाएगा। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में। अभी इसमें 2000 मेगावाट का सुबनसिरी प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेट कमीशन हो गया पिछला मंथ में 26 अक्टूबर में कमीशन हुआ। एस्टरडे ओनली दूसरा मशीन में भी वेट कमीशन हुआ। वेट कमीशन मीन्स उसका टेस्टिंग में ऑलरेडी
पानी अभी टनल में चल चुका है, टर्बाइन घूम चुका है। इसका बाद जो प्रॉब्लम आता है वो टेस्ट कर रहा है। करीब करीब ये लास्ट में इस महीना एंड में ये कमीशन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट इनका सपोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट में ये प्रोजेक्ट इस महीना एंड में कमीशन हो जाएगा। इसमें सुभानसर में एक्चुअली 2000 मेगावाट 4 प्रोजेक्ट दिसंबर एंड तक है 1000 मेगावाट कमीशन हो जाएगा। इनका साथ है जो गवर्नमेंट इंडिया हमको टारगेट दिया हुआ 2032 तक 2300 मेगावाट करने के लिए कमीशन, ये करीब हम अचीव कर पाएंगे। इसका साथ 2047 ईयर तक 50,000 मेगावाट टारगेट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें अभी हमें कमी कर पाएंगे। ऐसे इसमें पीएसपी में जो पीएससी प्रोजेक्ट है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 23,000 मेगावाट, ये 15 स्टेट में वो लिया हुआ, वो एमओ साइन हो गया। डीपीआर अंडर कंस्ट्रक्शन पे, कुछ डीपीआर अभी सबमिट किया हुआ, कुछ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। ये हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टारगेट है एनएचपीसी दिया हुआ 50,000 मेगावाट 2047 ईयर के कंप्लीट करने के लिए, ये मेरा उम्मीद है एनएचपीसी का भी उम्मीद है, सीएमडीसी का भी उम्मीद है, ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट कर पाएंगे। इनका साथ है जो जे एंड के कुछ कंस्ट्रक्शन में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी प्रोजेक्ट, ये भी आप कर पाएंगे। इसका साथ है इसका साथ है एनएचपीसी एक्चुअली जो बिग सेंट्रल पीएसयू इस ये हाइड्रो प्रोजेक्ट में ये सबसे अच्छा। हम दूसरा जो सेंट्रल पीएसयू जैसे सतलज विद्युत निगम हो गया, तेहरी हो गया, तिस्ता थी ऊर्जा, उनको भी सपोर्ट करते, प्लस दूसरा सपोर्ट भी करते स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट, किसका भी सपोर्ट करते। कोई आप जैसे आपका डीपीआर बनाना है, प्लस उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, एनएचपीसी में सपोर्ट करके उसको भी क्लियर करते हैं। ये भी दो एनएचपीसी का जो अपना जो टीम है, अलग अलग टीम है, डिजाइन टीम है, टेस्टिंग टीम है, प्लस अलग अलग डिवीजन है। इसको हमें हर एक स्टेट में करने रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं सेंट्रल पीएसयू से हमको रिक्वेस्ट करते हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करते हैं। साथ यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो यूटी लद्दाख में 2 प्रोजेक्ट है, एक निमोवाज को है, एक चुतक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। निमोवाज को 45 मेगावाट, चुतक हो गया 44 मेगावाट। ये जिसी टाइम में हमें एनएचपी शुरू किए थे 2001 में, इसमें यहाँ पे टॉप ट्रेन में इसमें क्या होता ना, बहुत कोल्ड स्टेट में, हम इस टाइम लाइट नहीं था। जो पहले जो एनएचपीसी लोग थे जितना मदद में 2001 से लेकर 2012-13 में चुतक पावर स्टेशन को कमीशन करेगा। मैं इस टाइम में सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ का लोकल पीपल, लोकल जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये उनका सहयोग में, उसका हेल्प में ये जो चुतक पावर स्टेशन अब कारगिल में और निमोवाज में जो 40 मेगावाट लेह में जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ, आज तक अभी अच्छा जनरेशन दे रहा है। इसलिए सबको मैं धन्यवाद दूँ, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी धन्यवाद दूँ, इस सपोर्ट में ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है। सेकेंड पॉइंट 2013 में जो कमीशन प्रोजेक्ट हुआ, इसमें क्रिटिकल में एक्चुअली यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं था। हमें एनएचपीसी इसको कमिटमेंट किया जाए, हमें आइसोलेशन से यहाँ का जितना पावर है 5 मेगावाट 2 मेगावाट हम ऐसे मशीन चलाएंगे। इसलिए 2013 से लेकर 2019 तक 6 साल बीएल इंटरिंग ये भी हम पहाड़ों में बहुत हुआ। इसका बाद भी ये एनएचपीसी कमिटमेंट किया जाए लद्दाख को हमें मशीन चलाना है। इसलिए आइसोलेशन मोड पे कभी 2 मेगावाट और कभी 3 मेगावाट, जैसे आपका पार्शियल लोड में जनरली मशीन चलता नहीं है। इसका बाद भी एनएचपीसी कमिटमेंट किया हुआ है हम पार्शियल में चलाएंगे। 2013 से लेकर 2019 तक हमें 6 साल अपना मशीन को बियरिंग करके बाद भी हम मशीन चलाए और लद्दाख को फुल सपोर्ट किया हुआ, बिजली दिया हुआ। इसका बाद 2019 से ग्रिड कनेक्टिविटी आया, इसका ग्रिड से कनेक्ट हो गया। इसमें हम नो इशू नहीं आप मशीन, इसीलिए हम लोगों को अभी अच्छा से चल रहा है।
पूरा जितना पानी आ रहा है पूरा यूटिलाइज कर रहा है, बियरिंग ट्रेनिंग में भी कम हो रहा है, इसीलिए हमें फुल मशीन चल रहा है 40 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी वाटर वी रन NHPC रन द मशीन्स। इसका साथ साथ हम लोग भी NHPC एक CSR स्कीम है, इसको हमें यहाँ पे लद्दाख में उनका करीब 1.3 करोड़ एवरी ईयर CSR में कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना, कहाँ पे स्कूल बनाना, ये भी काम लद्दाख में हम काम कर रहा हूँ, हर एक साल में ये भी काम कर रहा हूँ। इसका सहयोग में अपना गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख में हेल्प सहयोग में ये काम है, संभावना भी कर रहा हूँ, ये करते रहेंगे भी, आगे से भी करते रहेंगे। इसका बाद पिछला साल हमारा 50 ईयर्स गोल्डन जुबली हुआ। गोल्डन जुबली में चुतोक पावर स्टेशन का कुछ नया एक्टिविटी कराया। यहाँ पे स्वर्ण जयंती द्वारा बैरेज में गेट है उसको कंस्ट्रक्शन कराया। एक सिक्योरिटी रूम है, अपना जो लद्दाख पुलिस स्टेशन है न्यू काम, दिस इज न्यू वर्क्स इन गोल्डन जुबली। सिक्योरिटी बिल्डिंग है अपना बैरेज में, उसको भी बनाया। यहाँ पे जो चुतोक पावर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसको हमें भी एक्सटेंशन कराया। जितना यहाँ पे एक्चुअली जगह तो है नहीं, जहाँ पे जितना संभव है हम इसमें कर सकते हैं। सेकेंड ऑडिटोरियम में भी जो जगह में अभी चल रहा है। इसका साथ साथ हम बनाना चाहता हूँ जो चुतोक पावर स्टेशन पिछला साल से जितना जनरेशन हुआ हम लोगों को अक्टूबर 12 को हमें अचीव कर लिया हुआ। पिछला जो 6 साल में जितना जनरेशन हुआ हर एक में अक्टूबर 20 पिछला महीना अक्टूबर में हमें अचीवमेंट कर दिया, हाईएस्ट जनरेशन अचीवमेंट करा दिया। आगे से हमको भी 4-5 महीना हुआ, आज ज़्यादा होएगा, ये हम अचीवमेंट है। सेकेंड थिंग वो आपका जो बोले सुबानसरी का जो प्रोजेक्ट है इसको करेंगे। थर्ड एक चुतोक पावर स्टेशन में साहब से बात हुआ, अभी जो CEC साहब से बात हुआ, अपना ग्रीन हाइड्रोजन नाम को मिला हुआ था, हमें भी अवार्ड कर दिए थे, काम कर दिए थे उसको करने के लिए। ज़मीन ले लिया, हमें एयरपोर्ट पास से ज़मीन ले लिया। किसी वजह से जो बंदा को हमें अवार्ड किया काम नहीं कर पा रहा है, हमें दोबारा कोशिश कर रहा हूँ टेंडर के लिए। होपफुली इसको कोशिश करेगा NHPC वो ग्रीन हाइड्रोजन को सक्सेस करने के लिए। हम कोशिश कर रहा हूँ, चुतोक पावर स्टेशन तरफ से बोल रहा हूँ मैं, ग्रीन हाइड्रोजन सक्सेस करेंगे। इसका बाद में NHPC डे में जो बनाते हैं, इसका बाद हर एक साल हमें बनाते हैं इसको मेमोरी में, इसको अपना एनकरेजमेंट करने के लिए उसका अपना जो सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट साथ है NH डे में हर एक साल करते हैं इसे 51 में से। इसलिए आप डॉक्टर साहब जो आपका CEC साहब आया, बहुत टाइम जो दिया, आई एम तो वेरी सरप्राइजिंग, अप्रिशिएट हिम। कहना जितना जो काम करे इन टाइम में काम करता है, यू कैन सक्सेस इन फ्यूचर। आई एम वेरी अप्रिशिएटेड CEC साहब, बिफोर टाइम में पहुंचे यहाँ पे। आई कैन नॉट इमेजिन एक्चुअली इस टाइम में होने चाहिए। मेरा भी आदत है, मैं बिफोर टाइम में जो टाइम दिया हुआ हम करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम NHPC में भी सेम डेडिकेट टाइम करते हैं। टाइम में कहाँ पे प्रोजेक्ट लेते हैं, एक्चुअली जो NHPC लेते हैं प्रोजेक्ट हर एक हिल से लेते हैं, जहाँ पे बंदा जहाँ नहीं पाता है उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं। जहाँ लोग यहाँ पे देखे होंगे, बाकी यह नहीं, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जितना प्रोजेक्ट लिए लोग जहाँ पहुँच नहीं पाते, हम इसमें पावर हाउस बनाई के दिखा देते हैं। एक्चुअली NHPC ये सबसे अच्छा है, इसीलिए दिखा देते हैं। ये इन टाइम में डेडिकेटेड काम करते हैं, स्टार्टिंग में डेडिकेटेड काम करते हैं। इसे डॉक्टर साहब जो CEC चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत राइट टाइम में, राइट टाइम क्या बिफोर टाइम में पहुँच गए, ऐसे एक्चुअली मेरे को बहुत खुश लगा। रियली मैं ऐसे टाइम में आए भी काम कर रहा हूँ। दोनों काउंसिल साहब भी आए हैं, वो भी टाइम में आए, ऐसे नो डाउट वो तो कुछ काम होगा इसमें। बाकी एक्चुअली यहाँ पे सारे मैं SP साहब को बोले थे, DC साहब बोले थे, बात किए थे, किसी वजह से दोनों आ नहीं पाए सारे। DC साहब तो आउट ऑफ स्टेशन, SP साहब तो आने थे 6 बजे भी फ़ोन किए थे, वो आने वाले थे। 8 शायद आधा घंटे पहले जब बोले उनका तबीयत प्रॉब्लम है हॉस्पिटल के होता है, वो मना कर दिए, एक्चुअली आ नहीं पाए। ठीक है, इसमें जो ऑनर किए है कहना फ़ोन में मैसेज दिए किसका प्रॉब्लम होता है वो दिक्कत, दयाल जी नो प्रॉब्लम। आई थैंकफुल टू ऑल
जो CC साहब काउंसिलर सर, एंड थैंकफुल टू माई हार्टिएस्ट थैंकफुल टू all and अपना NHPC officer staffs and Ladakh staffs. Again, the best wishes and congratulate for 51st Aging NHPC Day. Thank you to all. Thank you to all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Ladakh, Jai NHPC. Thank you to all. Thank you so much, HOP sir, for your valuable insights. Now, with great respect and honor, I would like to invite our chief guest, Honorable Chief Executive Councillor and Chairman LHDC Kargil, Shri Dr. Jafar Rahun sir, to kindly come on stage and grace the occasion with his inspiring words. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री रमाकांता जी मलिक, HOP छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट, मोहम्मद सुहेल GM सिविल, हमारे ऑनरेबल काउंसलर नूनो नासिर हुसैन मुंशी साहब, ऑनरेबल काउंसलर हमारे आगा सैयद ऐनुल्लाह साहब, NHPC के जितने भी हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये गोल्डन जुबली के मौके पर पूरे NHPC के परिवार को मैं अपने ओर से और अब हमारे करगिल के पूरे आवाम की ओर से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वाकई में NHPC जब से यहाँ पे आए हैं, मैं तकरीबन शुरू से ही हम इनके साथ हमारा वास्ता रहा है। जब मैं एज ए डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे एज ए DTO काम करता था, तब भी यहाँ क्योंकि पेशेंट वगैरह फिर यहाँ के आपके मेडिकल स्टाफ वगैरह होते थे, और उस वक़्त हमारे जो भी VIP वगैरह आते थे तो आप लोग हमारे ये गेस्ट आपके गेस्ट हाउस वगैरह है, उनको यहाँ पे हम आपसे एकोमोडेशन वगैरह लेते थे क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत इंतज़ाम अच्छा होता था। मेरा कहने मतलब है कि NHPC पूरे इंडिया में हमारे हिंदुस्तान को, हमारे अजीम मुल्क को जो रोशनी दिया है इन्होंने, वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। इन्होंने इतना काम किया है हमारे इस पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। आज हम बहुत से जगहों पे ख़ुद कफ़ील है इंडिया में कि हमारे पास लाइट का जो इशू था, आप जानते नहीं है सर, कुछ साल पहले हमारा एक तो जनरेटर वाला ये चलता था, फिर टाइमिंग होता था हमारा शाम को सर्दियों में हमें 5:30 बजे से 10:30 11 बजे तक, फिर उसके बाद आपका सुबह फिर बीच में हो गया, सुबह हमारे सहरी नमाज के वक्त थोड़ा सा लाइट आता था। उसके एक तो बहुत हाई कास्ट होता था उसका गवर्नमेंट एक्सचेकर पे, दूसरा ये था कि हमारे पोल्यूशन वगैरह बहुत, ये क्योंकि ये डीजल जनरेटर वगैरह होते थे तो पोल्यूशन बहुत होता था। आपके आने से पहले हमारे यहाँ पे इकबाल माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलता था, तो उसमें 3-4 मेगावाट का, तो ये हमारे करगिल का पहला हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे यहाँ पे ये बना था। वो भी काफ़ी देर उसने अपना सर्विस दिया, फिर पिछले कुछ सालों से वो डिफंक्ट था। फिर हमारे एक्स LG साहब आए, उन्होंने, मैंने उनसे रुजू किया कि हमारे एक तो पावर ऑगमेंट हो जाएगा, दूसरा हमारे लिए रेवेन्यू भी एक बन जाएगा क्योंकि ये हमारे बजट से बना हुआ है। तो अभी अल्लाह के फजल से वो भी उस पर काम जारी है। तो हम तो उसके बाद वो तकरीबन 4 मेगावाट का, उसके बाद हमारे ये नेशनल ग्रिड में वो भी जाएंगे और हमारे जहाँ भी पावर के इश्यूज़ है उसमें हम ऑगमेंट करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा ये है, मैं पिछले साल 1-2 बार हमारे पावर मिनिस्टर से मिला था तो हमारे यहाँ पे 5 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल छोटे भी नहीं है, 19 से 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट 2
दो प्रोजेक्ट तो दो तीन तो इसी दरियाए सुरु पे है, एक द्रास में एक हमारे ज़ास्कार में है। तो गवर्नमेंट ने हमें वो ये 2017 में कैबिनेट ने क्लियर किया हुआ, इसी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के क़यादत वाले कैबिनेट में क्लियर कर दिया था ये प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए। मगर बाद में क्या हुआ, एक तो आप 2017 के बाद कुछ हालात ऐसे बने, 2019 में हम यूटी हमारा दो हो गया, JNK से अलग हो गया, तो उसके बाद ये ऐसे वो पड़ा हुआ है। तो पिछली बार ये कोशिश कर रहे थे हम, इंशाल्लाह वो हो गया। मैंने ये बताया था कि क्योंकि हमारे NHPC के पास पूरा एक तो मैन पावर है और इनके पास पूरा इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट है, हम इनको दे के वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कह के, और गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल माना भी है, मगर उस पर कहीं से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है वो भी उसमें हम सब मिल के अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे करगिल के इकोनॉमी भी, और जहाँ लाइट ये लाइट वगैरह का इशू है काफ़ी हद तक जो हमारे स्टेट के बाकी जगहों पे है या हमारे यूटी लद्दाख से बाहर है। तो आप गर्मियों में तो यहाँ पे हमें, सर्दियों में हमें यहाँ करगिल में हमें सर्दियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ता है लाइट वगैरह की, क्योंकि हीटिंग वगैरह हमें सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो गर्मियों में हमें जैसे ये हमारा कंजप्शन बहुत कम होता है, गर्मियों में कंजप्शन बाहर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा तो मैक्सिमम आपको पता है डिस्चार्ज गर्मियों में होता है इसका प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का। तो हम वो बाहर, आप हमारे पास ग्रिड भी है, बाहर ये सब हम कर सकते हैं, तो बाहर सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि करगिल का जो ये दरियाए सुर है वाकई में ये सोने के उससे कम नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने इस दरियाए सुर पे इतना आपके पास प्रोजेक्ट बन सकते हैं कि आप बिल्कुल आराम से यहाँ 200, 300, 400 मेगावाट बना सकते हैं। मगर ये हमारे पास फंड वगैरह होना चाहिए। और आप लोगों का मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपका बहुत मशकूर हूँ कि जब से NHPC बना है, हमारे करगिल का जो बिजली का जो ये बना हुआ है, क्या कहते हैं NHPC, जब से NHPC आपके यहाँ पे वजूद में आए हैं, करगिल मेरे ख्याल में बिजली के उसमें हमारे जहाँ तक पावर का जहाँ पर तक कंसर्न है तकरीबन ख़ुद कफ़ील है। मेरे ख्याल में आज के दिन में करगिल ले हो या करगिल पूरे लद्दाख, मेरा तो मैं करगिल के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो इसलिए करगिल वन ऑफ द बेस्ट पावर के हिसाब से इन द होल कंट्री। क्योंकि हम इधर उधर जाते हैं तो कहीं पे कुछ देर के लिए, कहीं पे कुछ घंटे के लिए ट्रिप होता है, और हमारे जो हमसाया हमारा यूटी है JNK, उससे तो हमारा फार बेटर है। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम श्रीनगर वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे बारी होता है, 1 घंटा लाइट आता है, 2 घंटा लाइट चला जाता है, इस तरीके से। उससे हमारे करगिल में ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। मार लोगों का ये होता है, ये दिल बांगे बोर, लोगों को तो और ज़्यादा करने की चाहत होता है, मगर इन सब में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, ये हमें मानना पड़ेगा। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे जो हमारे इसके छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट के हेड है, आपसे गुजारिश है आप अपना गुड ऑफिस भी यूज़ करके यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स और लाने का आप लोग भी, क्योंकि मंत्रालय में आप लोगों का बड़ा एक पहुँच होता है आपके अपने NHPC के हिसाब से। हम भी कोशिश करेंगे तो कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ पे और शुरू होता है तो हम सब के लिए, हम लोगों के लिए तो होगा ही, मगर आप लोगों का क्योंकि एक बने बनाए आपके पास मैन पावर भी है, मशीनरी इक्विपमेंट भी है, तो इसमें हम उस पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हम अगले साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम काफ़ी उसमें हमने काम किया है। तो सिर्फ गवर्नमेंट कह रहे थे हमें एक नया पॉलिसी बनने वाला है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो 20, 22, 25, क्योंकि 25 मेगावाट से कम वाला वो ये बिजली का बड़ा जो पावर मिनिस्टर के अंदर नहीं होता, वो MNRE या उनका अलग सा एक मिनिस्ट्री होता है। तो वो कह रहे थे पूरे कंट्री के लिए हम एक प्लान बना रहे हैं, उसके हिसाब से शायद हमारे भी आ जाए। मैं फिर एक बार ये गोल्डन जुबली
आप लोगों ने हमारे इंडिया को एनलाइट करके रोशनी दे के आप लोगों को 50 साल हो गया। ये हमारे लिए किसी वाकई में ये आप हमारे दिलों को एनलाइट करने का, हमारे दिलों को मुनव्वर करने का एक ज़रिया बना है NHPC। तो उसके लिए हम लोग और आपको ये भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले साल जब हमारे इसमें मार्च अप्रैल में हमारे सांको के लिए आप लोगों ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एक दिया था, और कुछ हमारे दूसरे छोटे वो थे सोलर का वो दिए थे आपके CSR में, जैसे आपने कहा आपके CSR। और मैं आपके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ NHPC का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ये PSUs वगैरह काम करते हैं, मगर बहुत सारे हमारे आप जानते हैं कि CSR हर एक का CSR होता है, मगर आप लोगों की तरह कोई आगे आके काम बहुत कम लोग काम करते हैं। हमें उम्मीद है इस साल भी आप लोग हमारे चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, जहाँ पे आप लोगों से हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे डी साहब भी उस आपके, क्योंकि जो CSR वगैरह आप देते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर के थ्रू होता है, तो कुछ आप हमें उम्मीद है करगिल में बहुत करने की ज़रूरत है हर फील्ड में, उसमें आप लोग हमें योगदान करेंगे। न सिर्फ इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने इतना हमारे लोकल बच्चों को यहाँ पे रोज़गार दिया है, ये भी बहुत सारे आप लोगों की वजह से हमारे घर आबाद है, हमारे घर चलते हैं, न सिर्फ घर चलते हैं बल्कि एक हमारे इस प्रोजेक्ट में वो लोग भी योगदान करते हैं हमारे करगिल वाले, उसके लिए भी हम आपके NHPC के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार इस गोल्डन जुबली के मौके पर पूरे NHPC के परिवार और हमारे NHPC के हेड और उनके पूरे ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. NHPC का रेजिंग डे सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक उत्सव है, एकता का, प्रगति का और हमारे रिच कल्चर का। इस अवसर पर हमने आपके लिए एक शानदार संगीत संध्या तैयार की है, जहां होगी लद्दाखी लोकधुन, हिंदी गानों की मिठास और रंग बिरंगी प्रस्तुतियां। और अब हम आपको ले चलते हैं लद्दाख की सांस्कृतिक धरती की ओर, जहां लोकधुनों में बसते हैं लोगों के जज्बात। प्रेजेंटिंग द पॉपुलर लद्दाखी जबरो सॉन्ग, एक ऐसी धुन जो परंपरा और भावनाओं से जुड़ी है। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। Jangan saya sendiri.
आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक शानदार प्रस्तुति, हिंदी और लद्दाखी फ्यूजन की अनोखी झलक। प्लीज़ वेलकम द टैलेंटेड इलियास खान एंड बैंड, जो अपनी धुनों से इस मंच को जीवंत कर देंगे। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Happy Rising Day to all the family of NHPC Kargil. Thank you so much for inviting us. तो आज हम लोग के बीच कुछ संगीत लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। और सबसे पहले गजल पेश करना चाहता हूँ। Okay, first I will introduce my band, Master Ilyas Khan, Mr. Singh on bass, Mr. Chospel on lead guitar, Mr. Pasam on drum, and our female vocalist, Miss Padma Chorol. पहला गीत है होठों से छू लो तुम। Hope you guys like and enjoy it. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। Hope you guys enjoy it. चलो सभी साथ में गाते हैं। आज की शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं साथ मिलकर। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल झनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। Famous vocalist, female vocalist, Miss पद्मा चोल, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज पे। मिस पद्मा चोल। Hello, Jida everyone. Very happy raising to all the NHPC members.
सोनी बसना चलो साथ में गाते चंदे जाना जरूर है चंदे जाना जरूर सुन टुगेदर ये झील सी नीली आंखें कोई राज इनमें गहरा था तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये शाम सितारे बदहोश ये ये शाम मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा तेरी जी तेरी हार सुन ले मेरे यार तेरा गम मेरा गम तेरी चाह मेरी चाह सब अपना प्यार चांद पे भी खेलेंगे चांद पे भी खेलेंगे तेरे लिए लड़ेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती
Now I may request HOP sir to please present a token of remembrance to our I request HOP sir to felicitate Honorable Councillor Nasir Hussain Munshi ji. Next, Honorable Councillor Aga Nurbuda ji. इसके बाद मैं आज के इस शाम की रौनक इलियास खान और उनकी बैंड को हर गांव हर शहर में गूंजे है नाम हमारा, NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। जल सौर और पवन से बिजली हैं हम बनाते, रोशन कई घरों को कारखानों को जलाते। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास खान ग्रुप, आपने इस महफिल की शान बढ़ाई अपने सुरीली आवाज से। इनके लिए एक बार एक तालियां हो जाए। इसके बाद में हमारे जो डांसर थे अम्मा ग्रुप को स्टेज पे दावत देता हूँ, वो यहाँ पे आके हमारे देशवासियों को समर्पित है ये संस्थान हमारा। आपने बहुत ही खूबसूरत लद्दाखी ईमानदारी संग जीतेंगे विश्वास सारा। श्रम ही हमारी पूजा, श्रम ही हमारा नारा, NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस ले। इसके बाद में लास्ट में NHPC से रोशन रोशन के बाद मैं बॉक्स सर को बुलाना चाहूंगी। मेहनत है इनका नारा। इसके बाद में आज के मीडिया कवरेज दे रहे थे हमारे नामी काबी उसे अनु साहब को दावत देता हूँ कि वो मंच पे आके HOP साहब से अपना टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस से ताली देकर स्वागत कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप पूरी दुनिया में छा जाए तो एक बार फिर तालियां इनके लिए। नमस्कार, जूले, आदाब। आज की शानदार हमारे कलाकारों की परफॉर्मेंस के बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारे माननीय श्री मोहम्मद जफ़र इकबाल साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, और हमारे काउंसलर नासिर साहब और आगा साहब जो हमारे जिन लोगों ने हमें कीमती वक्त यहाँ पे दिया और पूरे हमारे प्रोग्राम को बहुत बाखूबी, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए, क्योंकि स्पेशल टाइम इन लोगों को बिजी होने के बाद भी इन्होंने पूरा टाइम दिया। और आज की जो शानदार परफॉर्मेंस हमारे इलियास साहब की तरफ से जो परफॉर्म हुई है, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत थैंक्स, जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब यादगार परफॉर्मेंस दी। और इसके साथ ही हम अपने सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे समर्पित कॉन्टैक्ट स्टाफ, जिनके बदौलत, जिनकी मेहनत की वजह से ये पूरा कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से सफल हुआ, इतना शानदार इंतज़ाम, मुझे लगता है ये काफ़ी सालों में ये शायद पहली बार इस तरीके से हमारे चूतक पावर स्टेशन में हुआ होगा। और सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके एंजॉय किया है। हमारे जो जितने भी कलाकार थे, बहुत अच्छी धांसू परफॉर्मेंस कहना चाहिए, जिसे शानदार परफॉर्मेंस वो दी है और सभी लोगों ने एंजॉय किया बहुत अच्छे। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी का। और हमारे जो मैस के लोग, कॉन्टैक्ट स्टाफ, जिनकी वजह से पूरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे और आप सब लोग एंजॉय करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिनर के लिए आप रेडी है और आप लोग डिनर के लिए तैयार हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. As the melodies come to an end, the spirit of NHPC continues to shine bright
like a beacon of progress and unity. On behalf of the entire organizing committee, मैं सभी अतिथियों, कलाकारों, अधिकारियों और आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम NHPC के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, आयोजक समिति, टेक्निकल टीम और सभी सहायकों का दिल से धन्यवाद करते हैं जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। A big thank you to all the performers for their incredible talent and to you, our wonderful audience, for your energy and enthusiasm. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai NHPC, Jai Ladakh. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.